دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہودی اور مسلمان آپس میں سب سے بڑے دشمن کیسے بن گئے؟ آج کیسے یہودی مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں اور کیسے پورے دنیا کے مسلمان ایک چھوٹے سے دیش اسرائیل کے یہودیوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں۔ دوستو یہودی دنیا کی ایک ایسی قوم ہے جس کی آبادی بھلے ہی بہت کم ہے، لیکن اس دنیا میں ترقی کرنے کے معاملے میں یہ قوم سب سے آگے رہتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیسے ایک چھوٹا سا یہودی دیش کروڑوں مسلمانوں کے بیچ میں آباد ہو گیا؟ حالانکہ کئی مسلم دیش یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے غیر قانونی طریقے سے فلسطین پر قبضہ کیا ہے، جبکہ اسرائیل نام کا اس دنیا میں کوئی دیش ہے ہی نہیں۔ بس اسی وجہ سے آج بھی کئی مسلم دیش اس ایک چھوٹے سے دیش اسرائیل کو قبول نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا دیش فلسطین ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں نے ایک دیوار کے بارے میں سنا ہوگا، یہودیوں کی جو پوتر دیوار جسے کہا جاتا ہے، جس کو دیوار گریا بھی کہا جاتا ہے اور انگلش میں اس کو ویسٹرن وال بھی کہا جاتا ہے۔ اس دیوار کو یہودی دھرم کے لوگ وہ عزت اور اہمیت دیتے ہیں جو عزت اور اہمیت ہم مسلمان کعبہ شریف کو دیتے ہیں۔ خیر دوستو یہ دیوار ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا تھوڑا سا حصہ ہے، اور یہ یہودی پچھلے 2000 سالوں سے لگاتار اس دیوار کے پاس آ رہے ہیں اور اس دیوار پر اپنا سر مار کر روتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اس دیوار کو دیوار گریا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ گریا کا مطلب ہی رونا ہوتا ہے۔ خیر ہیکل سلیمانی کے بارے میں آپ کے دماغ میں یہ چل رہا ہوگا کہ آخر یہ کیا ہے۔ سلیمانی سے تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ آخر یہ ہیکل سلیمانی ہے کیا؟ لوگ اس بارے میں چرچا تو کرتے ہیں لیکن کھول کر بتاتے ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ساری ڈیٹیلز دیں گے۔ تو دوستو ہیکل سلیمانی کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ عبادت کی جگہ ہے، مطلب کہ جو بیت المقدس ہے یعنی مسجد الاقصی ہے، اسی کو یہ یہودی لوگ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ اور پیغمبر بنایا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے عبادت کے لیے مسجد الاقصی کو ہی پھر نئے سرے سے بنانا شروع کیا۔ حالانکہ دوستو آپ یہ نہ سمجھے کہ اس مسجد کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی بنوایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے سے ہی مسجد تھی۔ لیکن سب سے پہلے اس کو کس نے بنایا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ جاننا آسان نہیں ہے۔ بس اتنا جان لیجئے کہ مسجد الاقصی کو کعبہ شریف کے 40 سال بعد ہی بنا دیا گیا تھا۔ خیر دوستو جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مسجد کو نئے سرے سے بنانا شروع کیا تو بنانا شروع ہی کیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ بنے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ بننے کے بعد بہت ہی جلد اپنے والد کے شروع کیے ہوئے مسجد کا کام پھر سے شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کو بنانے میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں نے بھی کام کیا تھا۔ آخرکار بہت لمبے وقت کے بعد یہ مسجد پوری طرح بن کر تیار ہوئی، اور کیونکہ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا اسی لیے اس کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیکل سلیمانی پڑ گیا، اور تابوت سکینہ کو بھی اسی ہیکل سلیمانی کے اندر محفوظ رکھ دیا گیا۔ ہیکل سلیمانی کے اندر تابوت سکینہ کو جس خاص جگہ پر رکھا گیا تھا وہاں پر کسی بھی عام انسان کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس جگہ پر یہودی دھرم کے صرف بڑے بڑے عالم ہی جایا کرتے تھے۔ خیر دوستو اب آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی اب یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ تو خیر ہم نے اس کے اوپر ایک بہت ہی ڈیٹیل میں ویڈیو بنایا تھا، تو چلیے آپ کو شارٹ میں بتا دیتے ہیں کہ تابوت سکینہ کیا ہے۔ تو دوستو تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے، یعنی ایک بکسے کا نام ہے۔ لکڑی کا یہ صندوق ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ملا تھا، اور پھر یہ ایک ایک کر کے ہر نبی کے پاس میں پہنچتا رہا، یہاں تک کہ پہنچتے پہنچتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی پہنچا۔ خیر دوستو اس صندوق یعنی بکسے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی ہوئے ہیں ان میں سے بہت سارے نبیوں کی یادیں اس صندوق میں موجود تھی۔ کتاب قصص الانبیاء میں ہے
जबकि इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक भी मौजूद था। साथ ही साथ इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब तौरेत जो ओरिजिनल थी वो भी मौजूद थी। वही ओरिजिनल किताब जो अल्लाह की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल के लिए जन्नत से जिस बर्तन में खाना आया करता था वो बर्तन भी इसी संदूक में मौजूद था। खैर, ये संदूक पहुँचते पहुँचते हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास भी पहुँचा। वही दाऊद अलैहिस्सलाम जिनको यहूदी और ईसाई डेविड के नाम से भी जानते हैं। जब ये संदूक दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा तो यहूदी संदूक यानी ताबूत सकीना को अपनी मदद के लिए इस्तेमाल किया करते थे। जब भी इनको कोई परेशानी होती तो इस संदूक की मदद से वो अल्लाह ताला से मदद मांगा करते थे और इनकी दुआ बड़ी जल्द ही कबूल हो जाया करती थी। और यहूदियों की जब भी किसी से जंग हुआ करती थी तो ये ताबूत सकीना को अपने साथ लेकर जाया करते थे और जंग शुरू होते ही इस संदूक को अपनी फौज के आगे रख दिया जाता था, जिसकी बरकत से अल्लाह ताला इनको सभी जंगों में जीत नसीब करता था। यहूदी ताबूत सकीना को एक अलग खेमे में रखा करते थे और जिस खेमे में वो इस संदूक को रखते थे उसी खेमे की तरफ मुँह करके सारे यहूदी अल्लाह की इबादत किया करते थे। खैर, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद जब उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी तरह से मस्जिद अल अक्सा को बनवाया यानी हैकल सुलेमानी को बनवाया तो इस ताबूत सकीना को हिफाजत के लिए उसी हैकल सुलेमानी के अंदर रखवा दिया। दोस्तों, उसके बाद वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और ये कौम भी धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। बनी इसराइल यानी यहूदियों में एक के बाद एक नबी आते रहे और उनको समझाते रहे, लेकिन ये बदबख्त कौम किसी भी हुक्म को नहीं मानती थी। हर एक नबी की नाफरमानी करते और दिन ब दिन और ज़्यादा गुनाह करते जाते थे। आखिरकार अल्लाह की नाराज़गी की वजह से एक दिन इनके ऊपर अजाब नाजिल हुआ ये कि बाबुल शहर में एक बहुत बड़े जालिम बादशाह ने, जिसका नाम बख्ते नसर था, उसकी यहूदियों के साथ सख्त दुश्मनी थी। इसीलिए उसने यहूदियों के मुल्क पर हमला कर दिया। यहूदियों के मुल्क को जीतने के बाद उसने ताबूत सकीना को हैकल सुलेमानी से निकालकर बहुत बेहुरमती की और यहूदियों के ही हाथों से हैकल सुलेमानी को तुड़वाने लगा। यहूदी क्योंकि मजबूर थे वो रोते जाते और अपनी मुकद्दस हैकल सुलेमानी को तोड़ते जाते थे। इस हमले से बख्ते नसर ने तकरीबन 6 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया था और 2 लाख यहूदियों को कैद करके अपने साथ बाबुल यानी इराक ले गया था। इराक पहुंचने के बाद बख्ते नसर ने अपने शहर बाबुल से बाहर एक बस्ती आबाद की जिसका नाम तेल अवीव रखा और उस बस्ती में उन सारे यहूदियों को आबाद किया जिसे वो कैद करके लाया था। दोस्तों, इस हादसे के बाद कभी पता ही नहीं चल पाया कि आखिर वो ताबूत सकीना कहाँ गया। खैर, एक दिन बख्ते नसर पर भी अल्लाह का अजाब आया, इसीलिए क्योंकि उसने ताबूत सकीना की बहुत ज़्यादा बेहुरमती की थी। 540 ईसा पूर्व में ईरान के एक बादशाह साइरस ने बाबुल पर हमला कर दिया और बाबुल के बादशाह को हराकर बाबुल की उस सल्तनत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। साइरस क्योंकि एक रहमदिल इंसान था, इसीलिए उसने उन सारे यहूदियों को आज़ाद करवा दिया और आज़ाद करवाने के साथ साथ उन्हें अपने मुल्क में दोबारा हैकल सुलेमानी की तामीर करने की भी इजाज़त दे दी, बल्कि उन लोगों को यह भरोसा दिलाया कि वो हैकल सुलेमानी बनवाने में खुद उनकी माली मदद करेगा। साइरस की मदद से यहूदियों ने हैकल सुलेमानी नाम की उस अलीशान इमारत को तो दोबारा बना लिया, लेकिन इस बार हैकल सुलेमानी में ताबूत सकीना नहीं था और ना ही आज तक किसी को यह मालूम चल पाया है कि आखिर बख्ते नसर ने ताबूत सकीना का क्या किया था। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ताबूत सकीना की ज़्यादा बेअदबी होने की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पर उस संदूक को कहीं गायब कर दिया गया था ताकि दोबारा उसकी कोई इंसान बेअदबी ना कर सके। दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से उठाए जाने के ठीक 70 साल बाद यहूदियों पर दोबारा अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। इस बार रोम के एक बादशाह जिसका नाम टाइटस था, उसने यहूदियों के मुल्क पर हमला किया। टाइटस बख्त नसर से भी ज़्यादा खतरनाक था। इसने एक दिन में लाख लाख यहूदियों को कत्ल करवा दिया था। इसकी फौज ने यहूदियों के शहर यरूशलेम में बड़ी ज़बरदस्त तबाही मचाने के साथ साथ हैकल सुलेमानी को भी दोबारा से तोड़ दिया और यहूदियों को यरूशलेम से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया।
यरूशलेम से निकलने के बाद सारे यहूदी पूरी दुनिया में बिखर गए और हर जगह ये परेशान और रुस्वा होते रहे। तकरीबन पूरी दुनिया में 18 या 1900 साल भटकने के बाद जब वर्ल्ड वॉर में सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ और ब्रिटेन का फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा हुआ, तो उसने यहूदियों को अपनी एक रियासत फ़िलिस्तीन में ही आबाद करने की इजाज़त दे दी, जिसका नाम इज़राइल रखा गया। दुनिया के सारे यहूदी एक एक करके इज़राइल नाम की इस रियासत में पहुंचना शुरू हो गए। कुछ ही साल के अंदर ये एक ताकतवर रियासत बनकर सामने आई। लेकिन क्योंकि दोस्तों जिस जगह पर इज़राइल को ब्रिटेन ने आबाद किया था ये फ़िलिस्तीन की जगह थी, इसीलिए आज भी ज़्यादातर मुस्लिम देश इज़राइल को एक मुल्क मानने से इनकार करते हैं। उनका मानना है कि इज़राइल कोई मुल्क नहीं बल्कि गैर कानूनी तरीके से आबाद की हुई एक बस्ती है, जिसे हम कभी भी कबूल नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि इज़राइल और दूसरे मुस्लिम देशों के बीच बहुत बड़ी दुश्मनी है और यहाँ जंग जैसे हालात बनते रहते हैं। दोस्तों आज जब दुनिया के सारे ही यहूदी ऐसी जगह पर आबाद हो गए हैं जहाँ पर आज से 2000 साल पहले हैकले सुलेमानी हुआ करता था, तो उन लोगों ने ताबूत सकीना की भी बड़ी तेज़ी के साथ खोज शुरू कर दी थी, क्योंकि उनका मानना है कि ताबूत सकीना जिसके पास भी होगा वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना रहेगा, यानी वो कौम सबसे ताकतवर बनी रहेगी। इसीलिए इज़राइल के सारे यहूदी ताबूत सकीना को जल्दी से जल्दी ढूंढने के बाद मस्जिद अक्सा को शहीद करके उस जगह हैकले सुलेमानी की तामीर करना चाहते हैं, क्योंकि आज से 2000 साल पहले जिस बड़ी जगह में हैकले सुलेमानी नाम का वो महल हुआ करता था, उस जगह पर आज मस्जिद अक्सा भी मौजूद है। लेकिन हैकले सुलेमानी से भी पहले वो मस्जिद अल अक्सा ही हुआ करती थी। अगर साफ तौर पर यह कहा जाए कि वो हमेशा से ही मस्जिद अल अक्सा ही है, तो ये कहना गलत ना होगा। फिलहाल दोस्तों आज की ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को हर बार की तरह लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नूरे हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।